Good evening, class. Today we will continue the previous session that we were discussing, and in that session have started. We have started the discussion about dynamic routing. Why the next approach that we were discussing in dynamic routing, and the approach was distance vector algorithm. So we were discussing the distance vector algorithm in detail, and we will continue the discussion. And today we will have a practical session in which we will demonstrate uh, the new routing protocol that we have, RIP as a routing protocol. So let's start. Let me share the details. And okay, guys, we can clearly see the very first very important question that we all must have answer, that why we need a dynamic routing protocol. So the reason behind it is the diagram that has been shown to you. So it's very clear for us that it is not going to be an easy task to configure a number of routers by using static routes, because when we are talking about static routing is a routing process or is a routing that can help us to configure a small network actually. Because okay, my voice is not clear. So is it same for all? Okay, let me try to see the voice is on speak. Okay, maybe there could be uh, my voice is clear, I thought, or else I hope that it's working. So guys, let's continue with it. So what we are saying, that it is easy to configure such a big network by using a static route. Okay, because static route says that we have to manually add all the remote networks. So it is not going to an easy task. And the second part that we have discussed, that if we use dynamic routing, then there must be um, there must be a manual अपडेटेशन if any changes occur in my network. So अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि if we are using dynamic if we are using static routing for a network topology, so definitely अगर उसमें कोई चेंज होने वाला हो, या कोई चेंज हुआ हो, कोई नेटवर्क ऐड हुआ हो, या कोई नेटवर्क रिमूव हुआ हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मैनुअली अपडेट करनी होगी, and that updation will work on all the available routers. That's the issue actually. Okay, so that's the issue, that why we are using a dynamic routing protocol, not a static. So some examples, as we all know, the distance vector routing protocols, RIP, IGRP, and EIGRP. Three routing protocols that we count in distance vector routing protocol. There is another type of routing protocol as well as path vector routing protocol, and one more classification of routing protocol is link state routing protocol. So in our CCNA session, we will discuss only distance vector and link state. Path vector routing protocol will be discussed in the advanced level of Cisco certification, CCNP, of routing and switching. Okay, so distance vector, as we all know, distance means router using distance vector routing protocol knows to the. It will have the information of distance to the final destination and the direction as well. So the traffic should be directed. So this is the information distance vector algorithm has, and periodic updates. Yes, all we all know what are the properties of distance vector algorithm are,
that it sends periodic updates, it broadcasts the updates. Entire routing table is included into routing updates. So guys, इन चीज़ों को मैं रिपीट कर दूं क्या है. पीरियोडिक अपडेट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो भी अपडेट जाने वाली है या फिर जो भी कन्वर्जेशन होगा राउटिंग टेबल में, वो अपडेट कंटिन्यूसली होंगी. एक राउटर से अगर कोई अपडेट रिलीज हो रही है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, वो एक सर्टेन टाइम के बाद कंटिन्यूसली रिलीज होंगी. एंड द सेकंड थिंग, ब्रॉडकास्ट अपडेट. R1, if R1 has an update in the network, so R1 will send an update and the update will be broadcasted. That means the update will be forwarded to R2, R3 and R4 individually. Okay. Entire routing table is included into routing update. If one network has changed, agar if R1 has a new network is added into R1, so R1 by default will update the complete routing table or simply will forward as an update the complete routing table. So that is the third important point with the distance sector routing protocol, that it will send the complete routing table, entire routing table. Now we comes to the point that routing protocol algorithm, as we all know, define as a procedure for accomplishing a certain task. Okay, algorithm basically we set a definition for algorithm to solve. It is a procedure, is a systematic solution basically we can say, and it's a procedure, and the procedure will be used as like send and receive update, calculate the best path, detect and react to topology changes. So ये तीनों काम यहाँ पर होने वाले हैं. We all can see the R1 and R2. So in R1 there are two networks in R1, 172.16.1.0, because this is a network and this is a local network, so it has in the list, and it is directly connected network. It is also local network. It also is in the list. What about this? This is not in the list. And the same thing is for R2, because these are directly connected networks 2.0, 3.0, so these are listed in this routing table, but the 172.16.1.0 is not listed in R2's routing table. So this is what we have before the routing session. So the next is routing protocol characteristics. If I say criteria used to compare routing protocols. Okay, so how to compare which routing protocol is better and which is not. So we have some characteristics, we have some factors that are used to make the decision. Basically, time to convergence, scalability, resources usage, implementation and maintenance. So time to convergence, अगर हम लोग कहें, we took that time to convergence. So this is basically states that when it has been discussed earlier that if we have a network and the network has down, then it goes down, and if we are not reachable to a particular network, so the path will automatically updated and we will got a new path, and that operation will be done by the routers itself with the help of routing protocol. Okay, कोई भी नेटवर्क है डाउन चला जाता है, if you are not reachable to that particular network, तो हो सकता है मेरा एक पाथ डाउन चला गया हो, तो the router will do the operation the route by using the routing protocol to find out the next path, and not the next path, actually the best route. ओके, सो ये काम जो ऑपरेशन है वो टाइम टू कन्वर्जेंस, इसे कन्वर्जेंस कहते हैं हम लोग, और जो टाइम ले रहे हैं कन्वर्जेंस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं. सो गाइस ये ध्यान रखिए, EIGRP हैज द फास्ट कन्वर्जेंस इन कंपैरिजन ऑफ OSPF, ZIP और एनी अदर routing protocol. So EIGRP has the fast convergence. Scalability, to scale the routing, to scale the topology actually, that how the routing protocol behave or how the routing protocol handle the scalability of a network topology. On this,
the, this is the second factor that help us to take a decision or take come on a decision conclusion that which routing protocol is better. Resource uses, okay, some routing protocol uses some resources, some of resources like RAM they use, the link speed they use, okay, the CPU they use to calculate the best path. So how much what is the percentage of the users, how much they consume the CPU, how much they engage the CPU while they are working on it. So that's the thing which help us to conclude the which routing protocol is better. And the last one is implementation and maintenance. So according to implementation, which routing protocol is easy to implement and easy to maintain. So these are the characteristics or these are the factors that help us to distinguish between the routing protocols. So guys, we have a table and in this slide, sorry, everyone can see the advantage and a disadvantage. So if we comes with an advantage, everyone can see that the simple implementation and online simple implementation and maintenance, definitely yes, obviously the level of knowledge required to deploy and later maintain a network with a distance vector protocol is not high. तो पहली चीज तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पंगा है ना वो उतना ज़्यादा है नहीं, इजी टू इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगी. तो डेफिनेटली लो रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स ना लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरीज यूज नहीं करते हैं, नॉट दे रिक्वायर अ पावरफुल सीपीयू. वो नेटवर्क के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं और आईपी एड्रेस में, क्योंकि they do not need to do much calculations to calculate the best path, because as we all know कि path vector जो सॉरी डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उनका काम होता है कि नंबर ऑफ हॉप काउंट को देख करके कैलकुलेट करना कि विच वन इज द बेस्ट पाथ. So they do not have so much calculations. So obviously CPU and RAM consumption will be less. Definitely. And disadvantages are limited scalability. Obviously, distance vector routing protocols has the limitation of scalability. We will got that point, that limited scalability, how you can say or how you can understand the limited scalability works or not. So yes, obviously the routing protocols has a limited scalability, slow convergence, and this slow convergence means the use of periodic updates can cause a slow convergence. Even some advanced techniques are used, like triggered update, which are हम लोग जो बाद में डिस्कस भी करेंगे. देखो भाई सिंपल सी चीज, ये डिसएडवांटेज स्लो कन्वर्जेंस है क्योंकि ये पूरी की पूरी राउटिंग टेबल भेजते हैं. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक पीरियोडिक अपडेट भेजते हैं. ऐसा नहीं है कि अपडेट तुरंत भेजी जाएगी, कोई अपडेट हुई तो रैपिड अपडेट भी वहाँ पर नहीं की जाती है. तो दीज आर दी फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने हैं. Okay, so yes, limited scalability we have, slow conversion, slow resources requirement, advantage disadvantage that has been discussed by us. तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं. अब बात करें नेटवर्क डिस्कवरी, जो कि हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल की हम बात करें, तो नेटवर्क डिस्कवरी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, राउटर इनिशियल स्टार्टअप कैसे करता है, इनिशियल नेटवर्क डिस्कवरी की जाती है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो सबसे पहले राउटिंग टेबल में रखे जाते हैं. एज वी ऑल नो, अभी जब हमने बेसिक्स ऑफ राउटिंग शुरू किया था तब हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में देखा था कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे राउटिंग टेबल में एडेड होते हैं. वी डू नॉट नीड टू ऐड देम मैन्युअली. ओके, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अच्छा ये आप लोग यहाँ पर गौर कर पा रहे हैं कि टेबल में हमारे पास ये भी एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ 0 0 बने हुए हैं. तो व्हाट आर दिस, दीज आर दी हॉप काउंट. So all we can see them directly that R1 has FA 0/0, and one network is connected on
fs0/0, the network is 10.1.0.0. So our routing table of R1 has the entry of 10.1.0.0 on fast Ethernet 0/0 with the hop count of 0, because इस particular network तक पहुंचने के लिए मुझे किसी भी होप से नहीं जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ हॉप काउंट की हम बात करें तो किसी भी हॉप से उसे नहीं जाना पड़ेगा, वो उसी के लोकल हॉप पे है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हॉप काउंट सभी में 0 है। सेम 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 सिचुएशन यहाँ सभी में है। तो दैट इज हाउ वी कैन सी। ओके, एंड now we come to the next. Initial exchange of the routing protocol is, if a routing protocol is configured, then router will exchange routing information. जब तक कि routing protocol नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है, मैं चाहे RIP करूँ, चाहे IGRP लूँ, चाहे OSPF लूँ, कोई भी routing protocol जब तक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तब तक वो अपनी information exchange नहीं करेंगे दूसरे से. Once the routing protocol configured, routers will exchange routing information. और routing information में ध्यान रखिएगा, router will only share the routing table and the neighbors information only. Routing update received from other routers, router check update from new information. Router have to build their own routing table definitely. So router will check the updates for new information. अगर कोई नई अपडेट होती है तो मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी, नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाएगा राउटिंग टेबल में। गाइज वो जो इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि सर वो नई इंफॉर्मेशन क्या है, तो guys you all can see this. The previous diagram that we were discussing now has a different routing table, now has a different look after the routing. Earlier we have only, in R1 routing table we have only the entry of 10.1.0.0 and 10.2.0.0, but now we have the other updates as well, 10.3.0.0, and in routing table of R2 2, 3, 4, 1, and routing table of R3 has a 3 entry, and guys we can see the hop count as well, that how many hop count we have to there are to reach that particular network. So 10.3.0.0 मेरे पास, okay, there was, so I have some another, there is a remote network 10.3.0.0. If I want to reach to that particular network, I have to face a single hop count. So there is one hop count. So the number of hop count has been listed in my routing table. तो ये चीज़ हमें देखने के बाद समझ आ रही है कि चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं या कैसे उन पर काम किया जाता है. So guys, this is not so hard, and exchange of routing information की हम बात कर रहे हैं. So it's definitely router convergence is reached when all routing table in the network contain the same network. So routing table जब हमारे पास है और सभी routing table में सेम नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, मतलब सारा कुछ कन्वर्जेंस हो गया है, अपडेट आ गई है. देखो इस चीज़ को समझना, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एक डेफिनेशन दी थी और एक डेफिनेशन जो भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, राउटर कन्वर्जेंस. देखो ऐसा समझिए कि अगर सारी राउटर्स की राउटिंग टेबल में सेम एंट्री है, मतलब जितने भी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी राउटिंग कंप्लीट हो गई है. जितने भी नेटवर्क हैं टोपोलॉजी में, वो सारे नेटवर्क्स हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में हैं. इसका मतलब हमारी राउटिंग टेबल कंप्लीटेड है और सारे के सारे बेस्ट रूट हमारे पास हैं. अगर कोई एक नेटवर्क डाउन हो जाता है, अगर कोई एक नेटवर्क मेरे राउटर की राउटिंग टेबल में नहीं है, किसी एक राउटर की में, सो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर पैकेट तक, उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां तक होगी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में नेटवर्क ड्रॉप हो चुका है. इसे हम समझेंगे जब हमें राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं मिलेगी, तो हम उसको कैसे कन्वर्ज करेंगे, कैसे करेंगे. इफ नो न्यू इंफॉर्मेशन इज फाउंड देन कन्वर्जेंस इट इज रीच्ड. राउटर कंटिन्यू टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन. कन्वर्जेंस तब किया जाता है जब मेरे राउटर के पास कोई
कोई ना कोई रूट मिस हो, अवेलेबल नहीं हो, इस सिचुएशन में हमने ये सब करना होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर R1, R2 और R3 मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। सो क्या R1 की राउटिंग टेबल में सारे रूट्स हैं? हमने देखा जी साहब 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। R2 की में है? बोले हाँ जी साहब 1 2 3 4 चारों हैं। R3 हैज 3 routes. So definitely there are two routers which has incomplete routing table because there is one route is missing. So the information exchange will continue till the convergence is reached. जब तक राउटिंग टेबल में सभी राउटिंग टेबल में सारे रूट्स नहीं आ जाते तब तक कन्वर्जेंस नहीं आएगा और तब तक कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। And the important thing is convergence must be reached before a network is considered completely operable. So definitely before sharing the information, before using the network to share the information or to receive the information to start the say sharing the transmission, actually we have to be ensure that the network convergence has done. Speed of achieving convergence consists of two interdependent categories. So basically convergence के लिए हमें दो information we have to see two important factors. The first one is speed of broadcasting routing information. Guys, remember one thing, the term broadcasting, I hope that all of you can understand the meaning of broadcasting. Broadcasting means we are simply sending my update, we are simply sending my update from one router to all. So it is not recommended, or basically it is not compulsory to perform the broadcasting by every routing protocol. There are some other operations also available to send the routing information to other routers, to give the routing information to other routers. So obviously broadcasting एक term है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि distance vector algorithms हैं broadcasting पे काम करते हैं। तो हमें वहाँ ध्यान रखना है ब्रॉडकास्टिंग का रिप वर्जन 1 से ही लेना देना है, रिप वर्जन 2 में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। ब्रॉडकास्टिंग की बजाय वहाँ पर हम लोग मल्टीकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मल्टीकास्टिंग को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ब्रॉडकास्टिंग पर ही काम करते हैं। स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग रूट्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग रूट्स। हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के बाद, राउटिंग टेबल में रूट्स के पहुंचने के बाद हमारे राउटर्स को कितना टाइम लग रहा है रूट्स को कैलकुलेट करने में, रास्तों को तक पहुंचने में, that is also a factor that affect the convergence speed. Okay, so the next is, we guys can see this uh, this diagram, convergence time we are talking about. So we have a big topology diagram, and this we all can see the first time the convergence will reach at this, then and then the end of the time the convergence has reached. Sorry. Now we comes to the routing table maintenance. So periodic updates जिसे हम लोग कहते हैं, तो RIP वर्जन 1 एंड RIP वर्जन 2 दोनों ही पीरियोडिक अपडेट्स पर काम करते हैं। एंड पीरियोडिक अपडेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जिसके बाद में राउटिंग टेबल की जो अपडेट है वो फॉरवर्ड की जाती है पूरे के पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, अभी आप लोग, नाउ यू ऑल कैन सी दैट द राउटिंग टेबल is completed, and definitely we can say that this is a stage of convergence. Simple, this is a stage of convergence.
So, okay, obviously, uh, now we come to the next slide. So, बेसिकली ये टाइमर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर टाइमर के बारे में। तो टाइमर के बारे में हम लोग ये ध्यान रखिए आप लोग कि जो टाइमर की हम बात कर रहे हो तो रिप जो है वो 30 सेकंड के टाइमर के बाद पीरियोडिक अपडेट सेंड करता है। हर 30 सेकंड के बाद वो अपनी राउटिंग टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करता है। तो राउटर क्या करता है इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, शेयर करने के लिए, दे विल यूज द मैसेजेस। तो रिप हैज फोर टाइप ऑफ, sorry, four timers have it. It has four timers: update timer, invalid timer, hold down timer, flush timer. सर ये चार टाइमर है। टाइमर मतलब चार टाइम इंटरवल है जिनके बाद कोई ना कोई एक्शन होगा। तो अपडेट टाइमर है। अपडेट टाइमर में क्या होता है? तो 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद टाइमर में अपडेट आएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे 30 सेकंड के बाद दोबारा से मेरी राउटिंग टेबल अपडेट होगी। इनवैलिड टाइमर, होल्ड टाइमर, फ्लश टाइमर। देखो होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है? जब भी कोई राउटिंग टेबल में कोई रूट है, बेसिकली हम ये कहें, आप ऐसा ऐसा समझिए, मैं बात करूँ, ये कोई हमारा ये वाला जो राउटर था मेरा, इस राउटर के पास दिस दिस राउटर विल सेंड दी राउटिंग अपडेट एंड आफ्टर एवरी 30 सेकंड दिस राउटर विल सेंड एन अपडेट। आफ्टर एवरी 30 सेकंड दिस राउटर विल सेंड एन अपडेट। If due to some reason and due to some maybe due to the load of the network or due to the traffic and the connection, somehow the update is not received by is not reached to R3 in 30 seconds. So for how much time it will wait? So the answer is 180 seconds. 180 सेकंड तक ये वेट करेगा कि शायद अभी अपडेट आ जाए। तो होल्ड डाउन टाइमर तक ये वेट करेगा। अगर होल्ड डाउन टाइमर तक ये वेट करता है, नहीं आता है, तो वो उसे कर देगा कि भाई ठीक है, आप इसे हटा दीजिए, या ये हमारा इनवैलिड हो गया है। इनवैलिड टाइमर क्या कहता है? If an update has not been received to refresh an existing router route after 180 seconds, the route is marked as invalid by setting the metric to 16। अच्छा, metric to 16, metric की ध्यान दीजिए यहाँ पर। there is a limitation actually in RIP version 1, it has the limitation that maximum number of hop count, मतलब हमारा जो राउटर है, कितने नंबर ऑफ राउटर्स पे हम लोग रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 16 यहाँ पर लिमिट है। 16 के बाद आगे हम मैक्सिमम राउटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगर कोई नेटवर्क हमारे पास है, कोई नेटवर्क 16 राउटर को छोड़ करके 17वें राउटर पर है और मुझे उससे कम्युनिकेट करना है रिप का इस्तेमाल करते हुए, तो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो मैट्रिक को 16 सेट करते हुए रूट को राउटिंग टेबल में रखेंगे तब तक कि प्लस टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता है। तो जो होल्ड टाइमर है वो प्लस टाइमर तक का वेट करेगा। प्लस टाइमर क्या कहता है? बाई डिफॉल्ट द प्लस टाइमर इज सेट टू 40 सेकेंड। ये सब बाई डिफॉल्ट है, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। विच इज 60 seconds लॉन्गर देन द इनवैलिड टाइमर व्हेन द प्लस टाइमर। यस अल्लाह। Yes, sir. If a router not receive a update as complete, something was missing. What सॉरी, can we? If router receive an update with something missing, not complete, ओके, नो नो, आई मीन what's the solution? आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एक्चुअली we are now working on the distance vector protocol. RIP hasn't started. We we have not started RIP. We will start RIP in the next session. We are discussing about the dynamic routing protocols, characteristics, and the basics of routing dynamic routing protocol. So, what you want to ask? I mean, I'm sorry to Allah that I didn't get you. Can you please repeat, or else you can write that to the box?
okay, we got the message and we will discuss this. तो फ्लश टाइमर क्या कहता है कि अगर कोई नेटवर्क से मुझे कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है जो मुझे मेरे पड़ोसी राउटर से अपडेट से मिल रहा था, तो एक पर्टिकुलर जो भी एक नेटवर्क है वो मुझे मेरे पड़ोसी राउटर की राउटिंग टेबल अपडेट से मुझे मिल रहा था। अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए 240 सेकेंड्स तक वेट करेगा। अगर फ्लश टाइमर क्या कहता है कि वो वेट करेगा, अगर अभी तक वो अपडेट नहीं आई है तो उस पर्टिकुलर रूट को, उस पर्टिकुलर नेटवर्क को अपना जो राउटिंग टेबल में राउटर है वो उसे फ्लश कर देगा, उसे हटा देगा, उसे अपनी जगह से रिमूव कर देगा। वहां फिर कन्वर्जेंस खत्म हो जाता है। देखो, होल्ड डाउन टाइमर क्या कहता है, 180 सेकेंड। प्लस टाइमर कहता है 180 सेकेंड। इनवैलिड टाइमर कहता है 180 सेकेंड। ठीक है, हम इसे समझेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी कहाँ, रिप के अंदर। अच्छा, रिप की जो राउटिंग टेबल का मेंटेनेंस था वो हमने देखा अभी तक। दे विल गिव दी न्यू, बट एजीआरपी में क्या होती है, अपडेट्स अलग अलग तरीके से जाती हैं। एजीआरपी में अपडेट इस तरीके से नहीं जाती हैं कि पीरियडिकली अपडेट जा रही है, कंप्लीट राउटिंग टेबल जा रही है। एजीआरपी में अपडेट पार्शियल अपडेट जाती हैं, ट्रिगर्ड अपडेट जाती हैं, बाउंडेड अपडेट जाती हैं, नॉन पीरियडिक अपडेट जाती हैं। तो पार्शियल अपडेट्स का मतलब क्या होता है, अपडेट कंटेन ओनली द चेंज रूट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई नया इंफॉर्मेशन, कोई नया नेटवर्क ऐड होने पर पूरी राउटिंग टेबल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड टू फॉरवर्ड द कंप्लीट राउटिंग टेबल if a new network is added or removed. So partial update is an update that only contain only the changed routes. For example, a new network is added, so partial update will contain the information about the only new network, not the complete routing table. Triggered by topology changes. Okay, and the router. Okay, okay, I got a message. Wait. Guys, please wait for a minute. It's an important call, so I have to take it. So please wait for a minute. Sorry for the interrupt, guys. Okay, if we send an update and the router not receive a message, not complete or something missing. Okay, Allah, actually the router will send the update. Okay, and if
the update is not received completely. So in that time, if we are using grip now, so there is no need to worry about it. The update will receive after 30 seconds because it is a periodic update, and periodic update will automatically receive after every 30 seconds. So there is no need to worry. There is no need um, uh, to to wait to the whole time or to the invalid time. Because because there will be there is a time of invalid link is 180 seconds. So we will got the enough time to receive the new update. Again, receive the new update. After every 30 seconds, we will receive the update. So definitely, there is no need to worry about it. Okay. So there are four type of update we are discussing about. The are EIGRP. Trigger by topology change. Once a change happen, update is sent. So in that time, suddenly when the change occur, suddenly when the change occur, the update will be done at the same time to inform the other routers about the change as soon as possible to make the convergence. Okay, because convergence is an important thing if we are trying to send the data. और अगर मेरे पास मेरे किसी भी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई एक रूट मिसिंग हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या कोई एक रूट मेरा डाउन चला गया है तो मुझे सारे राउटर्स को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई अब उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर रूट तक आप मैसेज ना भेजें क्योंकि वो रूट मेरे पास नहीं है, उस रूट की रीचेबिलिटी खत्म हो गई है, ताकि बेवजह का ट्रैफिक या फ्लड ना हो। बाउंडेड अपडेट्स, अपडेट सेंड ओनली टू राउटर्स हु नीड इट। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि कोई भी राउटर सडनली रीस्टार्ट हो गया, तो जैसे ही टोपोलॉजी बनती है, जैसे ही मान लीजिए कि मेरे राउटर की राउटिंग टेबल मिस हो गई या मेरा राउटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया या फिर रीस्टार्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा था उसकी जो राउटिंग टेबल है वो फ्लश हो जाएगी। राउटिंग प्रोटोकॉल जो चल रहा था वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर राउटिंग टेबल की या उस पर कंप्लीट राउटिंग टेबल की। तो वो पर्टिकुलर जिस राउटर ने अपडेट रिक्वेस्ट की है, द राउटर दैट हैज दैट रिक्वेस्टेड the update only sent to that router only. The bounded update generally, it's an example that bounded update क्या होती है। तो हमने देखा कि सर बेसिकली जब एक राउटर में पूरी राउटिंग टेबल मिस हो गई है, एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है, डिलीट हो गई है, राउटर रीस्टार्ट हो गया है, तो इन दैट सिचुएशन जो अपडेट उस पर्टिकुलर राउटर को हुई है उस अपडेट को हम लोग बाउंडेड अपडेट कहते हैं। और रिमेंबर गाइस, नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं EIGRP राउटिंग अपडेट्स। नॉन पीरियोडिक मतलब कंटिन्यूसली आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंटिन्यू अपडेट नहीं जाती। ट्रिगर्ड conditions in which trigger update are sent। अच्छा, which are the conditions when we have to send the trigger update? इंटरफेस चेंज स्टेट हो सकता है, इंटरफेस डाउन चला गया हो, रूट बिकम अनरीचेबल हो सकता है, कोई रूट है जिस पर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था बट अभी वो रीचेबल नहीं है। रूट इज प्लेस्ड इन राउटिंग टेबल, कोई नया रूट ऐड हुआ है, नया रूट जैसे ही किसी राउटर में ऐड होगा तो एटलीस्ट उस राउटर की राउटिंग टेबल में तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि वो उसका लोकल रूट है डेफिनेटली। तो उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। सो दीज आर थ्री कंडीशंस, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंडीशन जब राउटिंग टेबल में जो ट्रिगर अपडेट्स फॉरवर्ड की जाती हैं राउटर्स के पास। तो वो कब कब है, इंटरफेस डाउन हो गया हो या नया इंटरफेस अप हुआ हो, या फिर रूट बिकम अनरीचेबल, रूट्स तक रीचेबिलिटी खत्म हो गई हो, या फिर रूट इज प्लेस्ड इन राउटिंग टेबल। So these are three conditions. Now we come to a very important problem in routing, and the problem is condition in which a packet is continuously transmitted within a series of routers. Okay, and this without ever reaching to the destination. So we are talking about to the destination. So 10.4. Okay, so this is the diagram. Let's
try to understand the diagram. 10.4.0.0 is a network. In the first diagram, this network goes down. Okay, before R3 can send an update to R2, send updates, R3 के पास कोई अपडेट R3 ने जब तक, ओके इसे ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, कि आफ्टर एवरी पीरियडिक अपडेट, इसका अपडेट इसके टाइम पे शुरू हुआ, सबका अपना पीरियडिक अपडेट अलग अलग टाइम पे होता है, जैसे नेबरशिप बनेगी उसी हिसाब से पीरियडिक अपडेट होगा। तो हमने कहा जी सर ये जो R3 है यहाँ पर कोई, ये रूट था मेरा, डाउन चला गया, इंफॉर्मेशन थी आगे जाएगी, जिससे पहले, इससे पहले की इंफॉर्मेशन आगे जाती, R2 ने क्या बोला, R2 ने इसको अपडेट भेज दी थी अपने, जो इसकी अपडेट होती है रेगुलर, वो अपडेट इसको भेज दी। इसके अपडेट में अभी भी ये सही चल रहा है। So in this time the 10.4.0.0 network goes down. तो ये अपडेट इससे पहले यहाँ पहुँचती, R2 ने अपनी अपडेट आगे फॉरवर्ड की, और इस अपडेट में इस नेटवर्क की रीचेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। ओके, ऑब्वियसली, डेफिनेटली उसके बाद में जब इसकी इंफॉर्मेशन इस तक पहुंच गई कि भैया जी ये रूट मेरा अब काम नहीं कर रहा, दिस रूट इज नॉट वर्किंग, तो ये उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से रिमूव तो कर देगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी उसकी इंफॉर्मेशन एडेड है। और इसके बारे में ना, देखो ऐसा समझिए भाई, इसने बोला R1 R3 के पास कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, R3 हैज सेड, हैज क्लियर द अपडेट कि सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट आई डू नॉट हैव द कनेक्शन विद 10.4.0.0। इसके बाद में R2 ने जैसे ही अपनी अपडेट R3 को भेजी, R3 के पास अपडेट जाते ही एक होप काउंट बढ़ करके और 10.4.0.0 वाली अपडेट आ गई है। देखो आप यहाँ पर देखिए, ये अपडेट खत्म हो चुकी थी और इस अपडेट का जो होप काउंट था वो क्या था, 0 था। लेकिन अभी ध्यान से देखें तो यही नेटवर्क मेरे पास किस होप काउंट के साथ लगा हुआ है, 2 के साथ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर ये अपडेट किसने भेजी है, R2 ने, और R2 के पास ये नेटवर्क क्या लिखा हुआ था, 10.4.0.0 serial 0/0/1 इंटरफेस एंड देन 1 1 इज द होप काउंट। तो ये होप काउंट जैसे R2 से R3 पर गया, वहां जाते ही होप काउंट एक बढ़ गया, क्योंकि R3 को ऐसा लगता है कि अपडेट कहाँ से आई है, R2 से, तो ऑब्वियसली R2 के पास उस नेटवर्क से रिलेटेड कनेक्शन होगा। तो उस अपडेट को इसने अपने टेबल में मेंटेन किया, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब जब पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड होगा, पैकेट जब R1 से निकला, R1 से पूछा कि भाई कहाँ जाना है, R1 ने बोला, R1 के पास पैकेट था, पैकेट के लिए पूछा कहाँ जाना है, तो बोला इस नेटवर्क पे, तो बोला ठीक है नेक्स्ट स्टॉप पे भेज दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ भेज दिया, ठीक है। यहाँ पहुंचा तो इसने बोला अभी कहाँ जाना है, 10.4.0.0 पे, लिखा कहाँ है, ये 1 है, इसको भेज दिया यहाँ पे। पैकेट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद पूछा भैया कहाँ जाना है, 10.4.0.0 पे जाना है, कहाँ भेजना है सर इसको आगे, सीरियल 0/0/1 पे भेज दो। कितने हॉप काउंट है, 2 हैं, तो इसको छोड़ के यहाँ, इसको छोड़ के यहाँ, पैकेट यहाँ वापस आ गया। यहाँ से पैकेट को वापस देखा, टेबल में एंट्री क्या है, 1 हॉप काउंट, यहाँ गया, यहाँ एंट्री 1 हॉप काउंट, यहाँ गया, यहाँ पे 2, वापस यहाँ। तो ये एक कंप्लीट लूप चल जाता है, इसी को हम लोग राउटिंग लूप कहते हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ कंडीशन एक्चुअली। कब होता है राउटिंग लूप,
इनकरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक रूट्स, मे बी कभी कभी स्टैटिक रूट अगर इनकरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हो तो ऐसा हो जाता है। Incorrectly configured route redistribution. Route redistribution is a different type of, we can say, concept basically, that is used to distribute the routes from one routing protocol to other. For example, आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी नेटवर्क अगर रिप के राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए काम कर रहा है और अगर उसको हमें किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में भेजना हो तो वहाँ पर उसे हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी इसे ऐसा समझ लीजिए। Okay, so next is slow convergence. So slow convergence was the problem एंड आर सिनेरियो, हमारे सिनेरियो में जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लूपिंग हुआ वो क्या थी? स्लो कन्वर्जन। इससे पहले कि R3 अपनी अपडेट भेज पाता कि ये रूट मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, R2 ने अपनी अपडेट भेज दी और इस वजह से लूपिंग शुरू हो गई। और इनकरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड डिस्कार्ड रूट्स, डिस्कार्ड रूट्स हम लोग पढ़ेंगे। इनकरेक्टली अगर उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कई बार हमें ऐसे रूट कॉन्फ़िगर करने होते हैं जिससे कि हम अनवांटेड ट्रैफिक को डिस्कार्ड करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तो अगर वो हमें करना हो तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बट वो अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है तो हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। लेटर आई विल डिस्कस दिस। तो राउटिंग लूप कैन क्रिएट द फॉलोइंग इश्यूज। अगर लूप क्रिएट हो जाते हैं उसकी वजह से क्या क्या इश्यू होती हैं? एक्सेस यूज ऑफ बैंडविड्थ, ऑब्वियसली अगर बेवजह लूप बन गया है तो कंटिन्यूसली वो पैकेट बार बार अगर हमारे टोपोलॉजी में रोटेट करेगा तो वहाँ पर क्या होने वाला है? बैंडविड्थ का एक्सेस यूज होने वाला। सीपीयू रिसोर्सेज में बी स्ट्रेन ऑब्वियसली for handling or for processing the packet from source to destination continuously to reach the destination. CPU will have to be used. Network convergence is degraded. Obviously, convergence will be degraded because it seems to be the stage of convergence, but not really actually. That is not a stage of convergence. We are missing a network, but still, if the routers show the reachability, so that is the problem. Routing updates may be lost or not processed in a timely manner, and routing updates will not process in a timely manner. That means if we do not have the better information of path, the path that has to be reached at time, तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर पाथ पर प्रोसेस मतलब अगर हमारा पैकेट नहीं पहुँचेंगे टाइम पर तो वो अपडेट्स मेरे लिए काम नहीं करेंगी और वो अपडेट्स लॉस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द कंजक्शन इन माय नेटवर्क और द एक्सेस यूज ऑफ बैंडविड्थ एक्चुअली। सो राउटिंग लूप प्रॉब्लम count to infinity, पहली प्रॉब्लम। दिस इज अ राउटिंग लूप whereby packets bounce infinity around the network, continuously पैकेट फॉरवर्ड होता रहेगा continuously। count to infinity मतलब there is no destination in the table। we have a network and we have the information of the destination of that particular
network, we have the path in our routing table, but still we are not able to reach the path. We continuously moving around and around and around in the routing table in the network path. So that is the problem known as count to infinity. This is a problem. Distance vector routing protocol set a specific matrix value to indicate infinity. Okay. So what it does, routing table, in our routing table, how we are going to understand that this network is not a network, is not an anymore a network, because if we are not getting reply from that particular R3, so what will happen? So for that we have studied invalid route define कर दिया जाएगा उसे, unreachable hop count 16 कर दिया जाएगा, and for that the network will be eliminated from our routing table. So that is, now the network will be eliminated. जैसे हमने उसे रूट 16 किया, अब वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा. पॉइंट ऑफ यूजिंग होल्ड डाउन टाइमर, हम होल्ड डाउन टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस टू अ रूट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. होल्ड डाउन टाइमर हमारे लिए हेल्प कर सकता है ताकि हमारे राउटर्स कोई नया अपडेट रिसीव ना करें और टाइम उसको इस्तेमाल कर सकें, रेगुलर अपडेट आए मेरे पास. inappropriately stealing a route that may have gone bad. हो सकता है कि जो R2 से मेरे पास इंफॉर्मेशन R3 तक गई थी, अगर मेरे राउटर के पास कोई कोई रूट फेल हो जाता है, डाउन चला जाता है, तो वहाँ पर हम होल्ड डाउन टाइमर ऑन कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि कोई और राउटर से मिलने वाली कोई अपडेट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए. और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा R3 पर कि ये नेटवर्क अब नहीं है, तो R3 से मिलने वाली अपडेट्स फिर R2 और R1 तक जाएंगी, ताकि वहाँ पर जो नेटवर्क था डाउन चला गया था उसकी एश्योरिटी हो जाए और कन्वर्जेंस हो सके. This timer stabilizes routing information and helps prevent routing loop during the period. When the topology is converging on new information, once a route is marked as unreachable, it may stay in hold down long enough for a router in the topology to learn about the unreachable network. By default, the hold down timer is set for 180 seconds. तो basically क्या है, होल्ड डाउन टाइमर की वजह से हम हमारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है राउटिंग लूप बने उससे रोकने के लिए. एक बार जैसे ही किसी राउटर को अनरीचेबल मार्क कर दिया जाता है, वो होल्ड डाउन लॉन्ग इनफ तब तक वो उस राउटर की टोपोलॉजी को होल्ड डाउन करता है जब तक कि वो अनरीचेबल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन तब तक स्प्रेड ना हो जाए. और इसका जो टाइम है वो कितना है, 180 सेकेंड. मतलब ये कि R4, ये जो R3 राउटर था, इस राउटर में जैसे ही इसको पता चला कि ये वाला रूट डाउन हो गया है, इस रूट को क्या क्या कर देगा वो, इट दिस रूट विल बी मार्क्ड एज अनरीचेबल रूट, एंड इसकी जो एडी वैल्यू है, इसका जो मैट्रिक्स जो है बेसिकली उसे 16 कर दिया जाएगा. उसके बाद R3 विल अप्लाई द होल्ड डाउन टाइमर, ताकि वो किसी और राउटर से उस पर्टिकुलर नेटवर्क की नई इंफॉर्मेशन ना ले ले. और होल्ड डाउन टाइमर अप्लाई करने के बाद जैसे ही वो फ्लश को वो इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जब R3 आगे फॉरवर्ड करेगा उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, तो वो राइट अपडेट आगे पहुंचने वाली है. अगर मैंने पहले ही 10.4.0.0 वाले रूट को क्या कर दिया, अनरीचेबल करके, और उस रूट की मैंने क्या कर दी, उस रूट को मैंने 16 उसका जो मैट्रिक्स है वो सेट कर दूंगा, तो क्या होगा, होल्ड डाउन टाइमर वहां पर अप्लाई करेंगे, और होल्ड डाउन टाइमर अप्लाई करने के बाद हमारा जो रूट है वो फिर प्रॉपरली काम करेगा, वो अपडेट कहीं और से मुझे नहीं मिलेगा. तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट अपडेट अबाउट सर्टेन नेटवर्क 180 सेकंड हमारे पास होता है इनवैलिड टाइमर. होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड है, प्लस टाइमर हमारे पास 180 सेकंड है. तो कंप्लीट हम लोग देखें किस तरीके से काम करता है नेटवर्क. तो पहले इनवैलिड टाइमर अप्लाई होगा किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए. अगर वो नेटवर्क डाउन चला जाता है या वो नेटवर्क अप मतलब नया नेटवर्क ऐड हो जाता है, उस केस में कोई भी नेटवर्क अगर डाउन हो गया है, कोई नेटवर्क की रीचेबिलिटी नहीं पहुंच रही है, उसे हम लोगों ने इनवैलिड रूट डिफाइन करके उसकी एडी वैल्यू हमने 16 कर दी. और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, 180 सेकेंड तक वेट करेंगे, एंड फॉर दैट वी विल स्टार्ट दी होल्ड डाउन टाइमर एज वेल.
और होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देंगे 180 सेकेंड तक, और जैसे ही मेरा 240 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे फ्लश टाइमर के, वो नेटवर्क वहाँ से फ्लश आउट कर दिया जाएगा और वो अपडेट आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो लूप से बचने के लिए वी विल यूज दी होल्ड डाउन टाइमर। देखो ये जो इनवैलिड टाइमर है, होल्ड डाउन टाइमर है, फ्लश टाइमर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीनों रिप के बारे में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्टली। अभी अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के ही बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से किसी भी नेटवर्क को, किसी भी नेटवर्क के बारे में अगर मैंने मैट्रिक उसके 16 अपडेट कर दी है, उसके बाद में जैसे ही मेरा जो होल्ड डाउन टाइमर शुरू होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है, कोई नई अपडेट नहीं होगी। और फ्लश जो टाइमर है वो अपडेट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आप लोग यहाँ पे गौर से देख सकते हैं फ्लश टाइमर का जो ग्राफ है वो हमेशा आगे है। कितना आगे है वो आगे है 16 सेकेंड। बिकॉज होल्ड डाउन टाइमर जो होता है, फ्लश टाइमर जो होता है वो 240 सेकेंड का होता है। ठीक है, सो यस, नाउ the split horizon rule basically used to prevent the routing loop। और split horizon rule क्या कहता है, ये रूल एक बेसिकली हमें कहता है कि सर कोई भी राउटर should not advertise a network through the interface from which the update come। दोबारा समझिए, जैसा कि R2 के केस में हुआ, the same the situation which occurs in R2 case। और प्रॉब्लम क्या थी, the network goes down in R3 and R2 is advertising about the particular network that belongs to R3 in its updating table, in its routing table, in its update। So वहां पर split horizon rule कहता है that R2 cannot advertise the update of 10.4.0.0 on this interface। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखने वाली बात। अब अगर मैं कहूं कि R2 will not advertise this and this information to this R1, R2 only advertise 10.3.0.0 and 10.4.0.0 to R1। These two information will not be advertised by R2 for R1, and these two information, 1 and 2 information, will not be advertised by R2 to R3। That is the statement of split horizon rule। So a router should not advise a network through the interface from which the update came। जिस इंटरफेस से वो अपडेट आई थी उस इंटरफेस पर वो अपडेट मुझे नहीं फॉरवर्ड करनी है। ये इंफॉर्मेशन स्प्लिट हॉरिजॉन रूल हमें कहता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव, स्प्लिट हॉरिजॉन विद पॉइजन रिवर्स। दिस इज अनदर रूल, एंड ये रूल हमें क्या कहता है, द रूल स्टेट दैट वंस अ राउटर लर्न ऑफ एन अनरीचेबल रूट थ्रू एन इंटरफेस advertised it as unreachable back to the same interface। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही किसी भी इंटरफेस से मुझे पता चला किसी रूट के बारे में कि अनरीचेबल है, वो इस इंफॉर्मेशन को कि सर ये तो अनरीचेबल रूट है, इस इंफॉर्मेशन को वो वापस से एडवर्टाइज करेगा टू द सेम इंटरफेस। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखिए समझिए इसको। पॉइजन रिवर्स हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि सर जैसे ही यहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजी इसने कि सर ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क कैसा है मेरे पास, अनरीचेबल है सर। पॉइजन अपडेट इसने भेजी आगे कि सर ये वाला जो नेटवर्क है, नेटवर्क मेरे पास कैसा है, अनरीचेबल है। सो R2 सेंड पॉइजन रिवर्स टू R3। सो डेफिनेटली R2 के पास इंफॉर्मेशन भेजी किसने थी, R3 ने, कि सर अब 10.4.0.0 वाला नेटवर्क है वो एक इनवैलिड नेटवर्क है और अभी हमारे काम का नहीं है। सो R2 ने वही इंफॉर्मेशन रिवर्स, पॉइजन रिवर्स, वही इंफॉर्मेशन R3 के पास भेजी कि सर आपने जो हमें अपडेट भेजी थी पॉइजन अपडेट, मेरे पास भी मैंने वो इंफॉर्मेशन ऐड कर ली है और ये लीजिए रिवर्स, पॉइजन रिवर्स अपडेट। सो देयर इज अनदर रूल।
सो रूट पॉइजनिंग एंड पॉइजन रिवर्स दोनों एक अलग इंफॉर्मेशन है। सो रूट पॉइजनिंग क्या है? सेंडिंग अपडेट अबाउट द अनरीचेबल नेटवर्क विद सेटिंग द मेट्रिक हॉप काउंट टू 16। रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे R3 ने किया, R3 ने बोला कि सर मेरा रूट अनरीचेबल हो गया। अनरीचेबल बोले तो सर 16 उसकी 80 वैल्यू मतलब हॉप काउंट मैंने मैट्रिक्स वैल्यू उसकी कर दी है, और मैं अब इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने वाली हूँ क्योंकि अब ये जो नेटवर्क है मेरे पास काम का नहीं है। तो रूट पॉइजनिंग इज सेंडिंग अपडेट अबाउट द अनरीचेबल नेटवर्क विथ सेटिंग द मैट्रिक टू 16। और पॉइजन रिवर्स, जैसे ही वो अपडेट, एज द अपडेट रिसीव फ्रॉम द राउटर जिसने स्प्लिट हॉरिजन रूल के अकॉर्डिंग सस्पेंड कर दिया उसको, वही इंफॉर्मेशन उसने आगे फॉरवर्ड कर दी उसी इंटरफेस पे। समझ रहे हैं? दैट इज द पॉइजन रिवर्स। आफ्टर रिसीविंग द पॉइजन अपडेट, the router will suspend the split horizon rule and send the same poison update again across the same interface, then resume split horizon rule again. So poison reverse कैसे काम करता है? पहले जैसे ही किसी एक राउटर पे पता चला कि पड़ोसी राउटर से कोई नेटवर्क था, वो नेटवर्क अब डाउन चला गया, तो उसने उसकी रूट पॉइजनिंग की अपडेट आगे फॉरवर्ड कर दी। जैसे ही उस राउटर ने वो अपडेट रिसीव की, उसने स्प्लिट हॉरिजन रूल ब्रेक किया, रिवर्स पॉइजनिंग की, और वापस से स्प्लिट हॉरिजन चालू कर दिया। तो ये हमारे पास पॉइजन रिवर्स है। So next is we have routing loops. So in routing loops we have IP and TTL. The TTL field is found in an IP header and is used to prevent packet from endlessly traveling on a network. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, TTL time to live value is a numeric value basically, and this value is set to the packets, and packet is encapsulated in IP protocol basically. So IP header will contain the TTL field and this is a numeric value, और ये numeric value हेल्प करती है प्रिवेंट करने में जो लूप था उससे। और वो कैसे हेल्प करती है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग वैल्यू है। और हाउ द TTL field work? TTL field contain a numeric value and the numeric value is decreased by 1 by every router on the route to the destination. If numeric value is 0, पैकेट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में यही स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर हमारी TTL वैल्यू 0 हो जाएगी तो पैकेट को वहीं डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे लिए हेल्प करता है एंडलेस राउटिंग पे। टुडे फैक्टर यूजेस टू डिटरमाइन वेदर दे यूज रिप और EIGRP। क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं? द नेटवर्क साइज, ऑब्वियसली जैसे जैसे नेटवर्क साइज इंक्रीज होती है, EIGRP मच बेटर देन RIP1 because RIP has the limitation of 16 hop count. That means only 16 राउटर्स हो सकते हैं बीच में किसी सोर्स और डेस्टिनेशन के। RIP के अंदर EIGRP has a bigger value. Okay. Compatibility between models of routers. Okay, so every new router has the better compatibility with EIGRP, and some of them maybe not with RIP because EIGRP is a routing protocol which will work on every device. Used of VLSM. Okay, speed of convergence. RIP has slow, RIP slow, IGRP slow, EIGRP fast. As I told you yes, as earlier, that convergence is fast in comparison of RIP. EIGRP has the fast convergence. Scalability. EIGRP can work in a large network, as we all knows that RIP has. Okay guys, it is not possible to for all of you to give me answers about RIP, EIGRP, सर ये RIP वर्जन 2 क्या है क्या नहीं है। टुमारो जब हम लोग इसको शुरू करेंगे रिप को, तो आपको समझ आने लगेगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या था, कैसे हमने स्टैटिक राउटिंग की बजाय डायनेमिक राउटिंग को
फॉलो किया, क्या फ़र्क आने वाला है, क्या प्रैक्टिकल में फ़र्क आने वाला है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। कल जब हम लोग ग्रिप को यूज़ करेंगे तो आप समझ जाओगे, इतने दिनों से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दो क्लासेस में, पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आज और एक इससे प्रीवियस जो क्लास थी, वो अब सब आपको समझ में आने लगेगा कि सर डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, हॉप काउंट क्या होता है, एडी वैल्यू क्या थी, कैसे रूट को फॉरवर्ड करता है, बेस्ट पाथ कैसे चूज हो रहा है, वो सब चीज़ें समझ आने लगेंगी। सो आई होप दैट आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कल जब हम लोग शुरू करेंगे रिप के साथ तो आप लोगों को सारा कुछ समझ आने लगेगा। स्केलेबिलिटी की हमने बात की, ओके, वीएलएसएम दैट मीन्स सबनेटिंग, जो कि रिप सपोर्ट नहीं करता है, ये जीआरपी सपोर्ट करता है। रिसोर्सेज की बात करें तो रिप कम रिसोर्सेज यूज करते हैं, ये जीआरपी ज़्यादा करता है। इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, ऑब्वियसली रिप सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है रिप के पास, बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं जिन पे ये काम करता है। ये जीआरपी ज़्यादा है, ये जीआरपी इज अ कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन ऑफ ओके। routing protocol today we have the routing protocol. So RIP, features of RIP supports split horizon with poison reverse and single, capable of load balancing as we all know क्या था, अगर मेरे पास कोई एक सिंगल रास्ता है किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सारा ट्रैफिक उसी से जाने वाला है। लेकिन अगर किसी एक डेस्टिनेशन तक जाने के मेरे पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं और उन सभी रास्तों की मैट्रिक्स वैल्यू सेम है, तो मैं मेरे पैकेट्स को, मैं मेरे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करूंगा या डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उन सभी रास्तों पे, ताकि किसी एक पर्टिकुलर पाथ पर लोड ना पड़े। इजी टू कॉन्फ़िगर है, वर्क्स इन अ मल्टी वेंडर राउटर एनवायरनमेंट, मतलब ये कि चाहे राउटर सिस्को का हो, चाहे राउटर हुआवे का हो, चाहे राउटर किसी और कंपनी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप कैन वर्क्स इन अ मल्टी वेंडर राउटर एनवायरनमेंट। एजीआरपी, एजीआरपी का सबसे अच्छा बेनिफिट था कि वो ट्रिगर अपडेट भेजता है। ये एजीआरपी हेलो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, पहले तो वो एजेंसीज बनाता है, नेबर बनाता है, उसके बाद वो अपडेट भेजता है। रिप ऐसा कुछ नहीं करता। ये वीएलएसएम को, रूट समराइजेशन को भी सपोर्ट करता है। रूट समराइजेशन हम जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीएलएसएम और समराइजेशन को तब तक आप होल्ड करके रखिए कि राउटिंग में ये कैसे काम करते हैं, हम प्रैक्टिकल वाइज समझेंगे। टोपोलॉजी टेबल का मेंटेन यूज़ करता है ताकि सारे के सारे रूट को हैंडल कर सके। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। सिस्को का प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है, ये ओपन सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड कि AGRP was a Cisco proprietary protocol, but today it is no longer Cisco proprietary protocol. Now it is an open source routing protocol. That means this can work on every vendor device. मतलब कहने का ये है, अब तक ये था कि AGRP सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पे काम करता है, लेकिन इन लास्ट 4 to 5 years the statement has been changed. Now AGRP can work for every device because it is an open source routing protocol now. It is not dependent on only the Cisco devices. So for today, this is all we have. So ये हमारा एक और सेशन था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि रिप हमारा कल शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो हमारे पुराने जो दोनों सेशन हैं, एक आज वाला और एक इससे पहले वाला सेशन, उन दोनों सेशन को आप कम्प्लीटली कवर करें ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएंगे और कल आप लोगों को काफ़ी अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कि हम लोगों ने लास्ट की 2 क्लासेस में देखा है। तो कल की क्लास में कोई भी मिस मत करना, और अगर किसी को कोई इशू होते हैं, कोई काम होता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें हमारे ग्रुप में। थैंक यू क्लास।